ہم قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کی نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت کو تفصیل میں دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی، گرج دنیا کے تمام کارخانے کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہم پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جچچا پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ پس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جسے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخرکار وہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں، اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ماند کر دیا، اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ بس اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف،
एक अल्लाह की इताअत के लिए यक्स हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। अब कौम समझी कि यह क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहिम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है। वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक़ैन की आवाज़ को कबूल कर लेने के बजाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे ज़रूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की ज़िंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की ये शानदार हुज्जत थी जो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती, तारा परस्ती के रद्द में ज़ाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गरज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूँगा जो तुमको ज़िद करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को ज़ाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के ज़रिए उनको ये बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और यह कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बैठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये गज़बनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आज़र और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज़्यादा पक्का कर दिया और इब्राहीम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग यह देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं, जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसर पैर की बात थी और इब्राहीम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक़ की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निज़ाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से यह कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूँगा। कौम की नसीहत के लिए बुतों से बगावत। गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो, तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी, इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जो न दी। इत्तेफाका की बात के करीब ही के ज़माने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहिम से इसरार किया कि वह भी साथ चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। चूंकि इब्राहीम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह सितारों में कमाल भी था और इत्काद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे ये समझे कि इब्राहीम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और ये सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे इब्राहीम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ़ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निज़ाम को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाजे कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुंचे।
देखा तो वहाँ देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहिम ने तंज भरे लहजे में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि ये सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते? और फिर इन सब को तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का यह हाल पाया बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहिम तल्लाहीदन असनामुकुम अलंबिया 21 से 57 कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दाब से उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने यह तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों, मजहबी पेशकाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर व फरेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि ये सब उस बड़े बुत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। लामहला वे यही जवाब देंगे कि कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है और फिर मैं उनके अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तला है। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा? इसलिए हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने यह किया है, बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हों तो इनसे मालूम कर लो। अलंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार ना थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इस तरह हज़रत इब्राहिम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं और उनको तमाम लोगों के सामने ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते, नफ़ा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्ज़ों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी, और बताया कि जब ये देवता न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं? अफसोस तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं? तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अलबिया 21:67। बस वे सब हल्ला करके इब्राहिम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूछते हो, और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। असाफरात 37.95.96। हज़रत इब्राहीम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी खबासत व नीचपन ने इस ओर ना आने दिया, और इसके खिलाफ उन सब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सज़ा दो और दहकती आग में जला डालो ताकि उसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए।
इंशाल्लाह अगली पार्ट 3 में हम देखेंगे बादशाह को इस्लाम की दावत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर तैयार की हुई। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आकर पूरी वीडियो को देखें। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।